Hello everyone, welcome to Stories That Shine. I'm your host योगिता सचदेवा और आज हमारे साथ हैं मिस नेहा जो कि फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर है. So let's welcome Miss Neha. Hi Neha, how are you? Hi, Yogita. Hi. Thank you so much for taking me on your, YouTube channel. So I'm so happy to connect with you. Okay, so Neha, tell me how you started your journey और आपको किसने इंस्पायर किया to be a French and German trainer? Okay, so actually, I completed my MBA and I was working in Bangalore as an HR. And while working on weekends, and I was staying with my real brother, so brother and sister-in-law. So my sister-in-law itself, herself is a German trainer. So she told me, why not on weekends you should learn something new. So on weekends you start learning French. Hmm. So I started my French journey from there. And Okay. while learning, I realized that I'm really fascinated about the languages. And I really, later in my life, actually, I realized my mother is also a Sanskrit trainer. Sanskrit, actually, she knows Sanskrit, not trainer, but she knows very well. So I thought that seed is inside me is there. So I really find fascinating learning French language. And from there, my journey started. And when I got married, I asked my husband that I want to do a formal training in learning language and all, and there's an institute called Alliance Francaise. So from there, Okay. I have completed my four levels, A1, A2, and B1, B2. And then I started learning, teaching French because I find it is so, it opens your door to the world and it gives you immense opportunity. And there are a lot of people who want to learn, but they don't know how to learn it properly or they need guidance. That time I realized that I should help them. And then I Hmm. started teaching French. And when I got bored with teaching French and French only, so again I started my learning journey with German language. And then I Okay. completed B2 level in German language as well. And right now I am a full-time language trainer for French and German language. Yes. So Oh, this is that's how my great. journey started. You are continuing your career after marriage as well. Yes, yes. Continuing, still I'm learning. There's no end of learning. Learning is a continuous process. So yes. Okay. So, what do you like? Why should students learn these languages these days? What are the career opportunities, or what is the scope of these languages? Okay, so I would say French and German are two powerful languages in this world. Abhi right now, what if I talk about the current scenario? So they are actually, if you want to go, French is spoken in almost every continent. Okay, in Africa, in Europe, then in Canada, then in India some part. So not India, sorry, in Europe, in Asia some part. Okay, so this is a global language, I would say. And German is a language which is widely spoken in the European countries, most of the European countries. So I would say if you know languages, that will really help you to go global. If you want to Hmm. go abroad for higher studies, that will also help you at that time to communicate with the local people. And Yeah. sometimes the country asks you to clear certain examination. If I take the example of Canada, so if you want to go Hmm. for PR, you have to clear either of the exam. It is called TEF or TCF. So at that time also your learning will help you, especially French language will help you. And they give you a strong advantage if you are working in a multinational company. And if you want to go global, if you want to go for, if you're looking for a onboard opportunity, and if you know the languages, you will be the preferred employee over there. So at that time, that will help you. Apart from that, if you don't want to go, if you don't want to wish, if you're not willing to go any, European country or anywhere, but that will help you to improve your memory. It will give you the confidence, and also this give you the cultural awareness. Okay, why? Because we are very proud of our Indian culture, and of course we should be. But there are other cultures also which we should know as a person, as a human being, that what are the other cultures available. So when you learn the language, you got to know about their culture as well. So yeah, that time these languages will help you. Language learning overall helps you. So there are multi benefits of Yes, learning language, not absolutely. just the career and all. We Okay. could say that, yeah. What makes your teaching style enjoyable and effective for the beginners?
Yes, so I can talk about my teaching style. First thing is that I always use the, simplify method. I keep my method teaching things very simple. I don't bombarded my student with the language, grammar rules. There are so many rules, Hmm. complicated things. No, I don't use that. I start with the very simple lessons. First, I start with the small greetings. I ask them also, I use a unique method which is called choral repetition. So what is that? Okay. So actually I ask my student to repeat after me. For first 4 5 classes, I ask them to repeat after me so that they can understand the pattern of the word. And then when they are capable of, understanding the pattern of their pronunciation, then I leave them and I ask them to read in front of me. Apart from that, we do a lot of listening practice. Sometimes I do a picture method, so where I show them the picture and I ask them that explain me. After certain, classes, I ask them to explain me this in French. I give them lot of grammar exercises. So grammar exercises help you to build the sentences. So Yeah. that is really helpful for them. And I be with friendly with them sometimes. Sometimes I scold them. So lots of mix and storytellings are there. Then sometimes I take example of English language to simplify or their mother tongue, like in Hindi also sometimes I take help to simplify the things कि हाँ ये चीज देखो आप हिंदी में बोलते हो तो ये चीज फ्रेंच और जर्मन में भी एग्जिस्ट करते हैं एग्जैक्टली लाइक मेरा मेरी मेरे अ वेरी सिंपल एग्जांपल तो इन फ्रेंच ऑल्सो मेरा मेरी मेरे वाला वर्जन है जो कि Okay. हमारे इंग्लिश में नहीं है हम हमारे इंग्लिश में सिर्फ माई बोलते हैं है ना तो द सिमिलर वे तो आई टेक एग्जांपल्स फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज एज वेल So, French and German is complicated than English. Not complicated, not at all. Actually, na, I feel कि after certain period ना English is more complicated, but we don't realize क्योंकि हम English बचपन से सीखते आ रहे हैं. तो जो हमारे Yes. पास रूल्स है ना वो बहुत धीरे धीरे करके आए हैं हमारे पास 10 साल में अपने एक लैंग्वेज सीखी है अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी कंसिडर करूँ 10th तक तो जबकि फ्रेंच और जर्मन में अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो वो रूल ही फॉलो करते हैं बहुत ही कम उनके पास ऐसे सिस्टम है जहाँ पे एक्सेप्शंस है एक्सेप्शंस भी Hmm. उनके लिमिटेड है और उसका रीजन है मैं आपको एक इंग्लिश का फनी बात बताती हूँ हमारे पास इंग्लिश में वर्ड्स प्लूरल करने के लिए एस ऐड करना होता है जैसे अगर मैंने आपको एक सिंपल वर्ड दिया बुक तो आप बोलोगे बुक्स है ना Hmm. अगर मैंने आपको लीफ दिया तो लीव्स बोलोगे मतलब VES F ड्रॉप करना होता है बेबी बोला तो Hmm. बेबीज बोलोगे IES लगाओगे है ना अगर मैंने Hmm. मैन बोला तो आप सडनली मैन बोलोगे Yeah. चाइल्ड बोला चिल्ड्रन बोलोगे राइट बट व्हाट इज द प्लूरल ऑफ शिप SHEEP शिप उसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता वो वही वर्ड होता है ना फिश Hmm. का भी फिश ही होता है फिशेस अलग अलग स्पीशीज को बोलते हैं ना तो इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस है लेकिन हम Yeah. रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम बहुत स्लोली उसके साथ अवेयर होते हैं ओके इंग्लिश में जैसे टेंसेस हमारे पास कितने हैं 12 टेंसेस है मतलब 3 हमारे पास Yeah. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है और सबके Hmm. 4 पार्ट्स है राइट फ्रेंच इतना सब. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रेंच में Hmm. भी 3 पास्ट के लिए 3 टेंसेस है और वो भी बहुत डिफाइंड है कि कब आपको सिंपल पास्ट टेंस बोलना कब पास्ट के लिए वैसा और वैसे ही जर्मन में भी ना बहुत सिंप्लीफाइड 3 टेंसेस है उनके पास्ट के लिए तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जबकि इंग्लिश में लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई हैव फिनिश्ड या आई हैव Hmm. फिनिश्ड एंड आई हैव सीन पीपल दैट दे आर कंफ्यूज कि उनको लगता है आई हैव और आई हैड फिनिश्ड दोनों सेम ही है बट ऐसा नहीं है तो Hmm. मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंस हम बचपन से सीखते आ रहे हैं हमें नहीं लगता है कॉम्प्लिकेटेड और अगर आपने फ्रेंच और जर्मन के रूल्स फॉलो कर लिए तो रूल्स ही है उनके जो आपको फॉलो करने हैं एक्सेप्शंस के लिस्ट बहुत कम है उनके बहुत कम ही रूल Hmm. ब्रेक होता है We have many exceptions. If we talk about the हम्म, spellings, if we talk about the हाँ pronunciation of the words, करेक्ट if we talk about grammar, so many things. As a teacher, it is sometimes difficult to answer for me also. कि why this like BUT is, हाँ but बट हाँ हाँ TUT is put. हाँ So why this is like that? So यस it is sometimes difficult to answer the small kids why it is happening. Like the language is like that only. But if we talk about French and German, I think, as you said, it is much better than English. मच बेटर अभी जो आपने एग्जांपल दिया इसी का सिंपल एग्जांपल देती हूँ जैसे यू को हम इंग्लिश में यू का फिक्स नहीं है अ भी साउंड Yeah. है यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में यू साउंड हो गया बट में अ साउंड हो गया
फिर पुट हो गया, अम्ब्रेला है में ना, O था। यूनिक हो गया, हाँ। अम्ब्रेला हो गया, वहां पे तो अ साउंड हो गया। बट ना जर्मन में मैं बात करूँ ना, तो यू के दो साउंड है, एक है ऊ और एक है यू। यू के ऊपर ना जब डबल डॉट होता है तो उसको यू साउंड करते हैं, और वो हर ओके। जगह फिक्स है। जैसे बी हम्म। यू एस, इंग्लिश में आप बस साउंड करते हो, जर्मन हम्म। में बी यू एस को ब्यूस बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो और ये फिक्स है, जहां पर भी आप यू देखोगे आपको यू साउंड करना है, और जहां पे भी यू देखोगे वहां पे ऊ साउंड करना है, और जहां पे भी हम्म। यू के ऊपर डबल डॉट देखोगे वहां यू साउंड करना है। फ्यून्स है, ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हम्म। ये चीज ना मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपने रूल समझ लिया तो बहुत कम ही रूल्स ब्रेक होते हैं उनके। So easily the student can अंडरस्टैंड pronounce. उनको, हाँ, मैं ऑलमोस्ट ना सेकेंड लेक्चर में उनको प्रोनाउंसिएशन गाइड दे देती हूँ। जर्मन का भी Yesterday. स्पेशली, फ्रेंच के तो बहुत लंबे लिस्ट है, बट जर्मन का अगर मैंने एक बार समझा दिया ना, बस आप वो सामने रख के आप जर्मन का पूरा एक पेज रीड करने में तो कर ही सकते हो रीड, भले आप समझो Yeah. ना, बट रीडिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। Mm-hmm. Yesterday my daughter came and asked me, "Mama, lukewarm क्या होता है?" I said, "What is this lukewarm? This is not lukewarm. This is lukewarm." So she is in eighth grade, so I was यस। wondering. वो भी अभी तक कंफ्यूज है कि दिस इज ल्यूकेवार्म और ल्यूकवार्म। हाँ तो करेक्ट। बहुत सारी कंफ्यूजन इंग्लिश क्रिएट्स। हाँ, So, what is the biggest misconception that students have while learning these foreign languages? so according to me, there are two biggest confusion or misconception people are having, or stereotype also. That first thing is that ki language learning is very difficult thing. Not at all. Hmm. This is not at all. Once you start learning German, any language, if you want to learn, for not for this languages, तो उसकी एक जर्नी होती है, अगर आपको तरीका पता है कैसे पढ़ना है, so it is easy. Okay. So not at all difficult. And lot of people think languages, especially the European languages, जापानीज, चाइनीज, मैंड्रीन, ये जो लैंग्वेजेस होते हैं, सब सोचते हैं कि ये स्मार्ट पीपल के लिए है, कि जो लोग कुछ Hmm. करना चाहते हैं वही पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ्स भी अगर अपने घर में थोड़ा, अगर उनको लगता है कि बच्चे चले गए, बोर हो रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, दे शुड लर्न। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग ना सिर्फ आपको लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ाता, आपकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। आप Okay. मल्टीटास्कर भी बनते हो, यू नो व्हाट। मैं भी बहुत कुछ हैंडल करती हूँ अपनी जिंदगी में, और बहुत कुछ इजीली हैंडल कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू मी, जैसा मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखती हूँ, अगर किसी एक लेडी को एक काम भी करना होता है तो वो बहुत सोचने लगते हैं कि, हालांकि Yeah. हाउसवाइफ्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट, बट जब उनको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती है ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की, तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं। और अगर मैं बात करूं दिस स्कूल स्टूडेंट्स की, तो उनको ऐसा लगता है कि इट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑल, बट वो लेटर इन देयर लाइफ दे विल रियलाइज कि अगर पढ़ लिया होता तो बेटर होता। तो और डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा मेंटोर चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, या जो चीजें सिंप्लीफाई करके बताए। और दूसरा आपको चाहिए थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी Yeah. ट्रेनर लगा लो, अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो कोई नहीं पढ़ा सकता है फिर। Hmm. How do you keep your students motivated when they feel stuck? हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट होता है वो 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने का भी होता है। तो कभी कभी जब एक टॉपिक होता है, जब वो गलतियां करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं। तो वहां पे दो चीजें मैं करती हूँ। एक तो पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि इट्स ओके, मिस्टेक्स हैपन, ओके। वो तो नेटिव स्पीकर्स भी मिस्टेक करते हैं। आप इंग्लिश ही देखो, दुनिया में इतने लोग बोलते हैं, क्या सारे लोग इंग्लिश सही ही बोल रहे हैं? तो मैं उनको और सब एग्जाम्पल, है ना, से बहुत सारे ग्राम, मैं खुद भी शायद करती होंगी। तो अभी हम्म। कैसा होता है कि आप जैसे इंग्लिश किसी को सिखाने जाते हो, किसी को इंग्लिश सीखना है, तो उनको हम क्या हम्म। बोलते हैं कि आप गलत ही बोलो लेकिन बोलो, डोंट हेजिटेट, है ना, या डू योर एक्सरसाइजेस। गलती होगी तो होगी, समझना पड़ेगा। तो सेम गोज फॉर एवरी लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो तो मिस्टेक्स आर द पार्ट, ओके। सेकंड ना, कि मैं कभी कभी अपने मेथड चेंज करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत मोनोटोनस हो रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा सिर्फ बोल रही हूँ और उनको समझ हम्म। में कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं उनको कोई वीडियो दिखा देती हूँ, कोई वीडियो शेयर कर देती हूँ। थोड़े बुक में कभी कभी मटेरियल चेंज कर देती हूँ, कि एक बुक होता है जिसके लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, जिसके एक्सरसाइजेस का समझ नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड बुक उनको या तो फिर मैं उनको प्रोवाइड करा देती हूँ, या अपने सामने कुछ थोड़े नीचे लेवल के एक्सरसाइजेस देती हूँ, ताकि वो थोड़ा एक सीढ़ी एक स्टेप अप आ सके,
और फिर उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ आए। तो होता है, मोटिवेशन उनको चाहिए होता है बीच बीच में। तो दो चीजें हैं कि आप या तो अपना मेथोडोलॉजी चेंज करो, और दूसरा या उनको थोड़े सिंप्लीफाइड, और उनको एक्सेप्टेंस दिलाओ कि हाँ होता है, मिस्टेक्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक समझ आ रहा तो आपको सारे टॉपिक समझ आएंगे, हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो उसको थोड़ा होल्ड ऑन करके हम थोड़े और इजी टॉपिक पे जाके बाद में उनको डील कर सकते हैं। So can you share any success story of any of your students? देयर आर मेनी ही एक्चुअली, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुली अभी अपने करियर में कर रहे हैं। बट जो मुझे अभी मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी वो एक निहारिका स्टूडेंट है मेरी। Okay. शी स्टार्टेड विथ मी विथ जीरो लेवल। शी वॉज इन Mm. ग्रेड 10 आई गेस व्हेन शी केम टू मी। एंड उसकी सिस्टर भी है, दिव्या, जो उसने पहले मेरे पास क्लासेस लगाए थे, एंड शी इज अ सीए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद फिर वो अपनी सिस्टर को लेकर आई थी मेरे पास, और फिर दोनों ने कंप्लीट किया A1 A2 और B1, 3 लेवल्स उन्होंने मेरे पास किया था। B2 दोनों ने सेल्फ प्रिपरेशन से किया। अभी अगर मैं देखूँ तो निहारिका फ्रांस में है, शी इज डूइंग MBA प्रोग्राम। और अभी हम बीच बीच में कभी कभी मीटअप्स करते हैं, और वो दोनों दोनों सिस्टर मेरे कनेक्ट में है। काफी हम्बल बैकग्राउंड से है दोनों, साउथ इंडियन है, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, जब भी मिलते हैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो उनको, उनमें से जो निहारिका है वो जो अभी फ्रांस में है, अभी पेरिस में है स्पेशली, शायद वो इंटर्नशिप पे है अभी। तो उससे मैं एक दिन बात कर रही थी और हम फ्रेंच में ही कम्युनिकेट कर रहे थे, एंड शी वॉज टॉकिंग लाइक अ प्रो। लाइक अ प्रो मतलब जिस लड़की को मैंने पढ़ाया ABCD, उस लड़की को मैंने प्रो लैंग्वेज में, लाइक नेटिव स्पीकर शी वॉज टॉकिंग, एंड शी वॉज गिविंग हर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी फियर एंड ऑल. So that inspired me a lot. That is a success story I want to put forward, and I want to show everyone that ki consistently if you progress, practice, and if you don't get demotivated, तो एक दिन आप Yeah. ऐसा बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो. शी इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर मी. और अभी एक और स्टूडेंट है मेरी, ऑन द वे है, वो भी फ्रेंच में ही करियर बनाना चाहती है, रति फेरी नाम है उनका। तो वो भी शायद बहुत ही जल्दी मेरे सक्सेस स्टोरी में आ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत है, जर्मनी में है एक नेहा है। उसने भी काफी अच्छा पिकअप किया है, उसने भी जर्मन में कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, फोटोज वगैरह डालते हैं, तो है काफी अच्छे अच्छे स्टोरीज है। बट ये दो तीन स्टोरीज है जो मुझे स्टक हो गई है, क्योंकि ये लोग कनेक्ट में भी है थोड़ा मेरे। तो यस, अच्छा लगता है इनको देखकर। एंड समटाइम्स इट फील्स रिवॉर्डिंग कि टीचिंग Yeah. इज अ रिवॉर्डिंग जॉब, जब आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा ग्रो आगे करते भी. हुए, कुछ करते हुए देखते हो, तो फील होता है कि हाँ Mm. कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में. Okay. So how do you make grammar and vocabulary easy to understand? ओके, तो पहले तो एक तो वोकेबलरी की बात करूँ तो मैं बहुत बेसिक से शुरू करती हूँ और अपने पीछे रिपीटेशंस करवाती हूँ, सो दैट कि उनको थोड़ी वोकेबलरी आ जाए। डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ उनको, डॉक्यूमेंट रीड करने को देती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ पहले बार में सिर्फ आप रीड करो। रीड करने के बाद आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहा है वो मुझे आप पूछो, एंड देन मेक अ वोकेबलरी बुक। उनको मैं सेपरेट कोशिश करती हूँ बोलने के लिए कि सेपरेट वोकेबलरी बुक बनाओ, जो आपकी अपनी वोकेबलरी बिल्ड करेगी। अभी कैसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं मैम वोकेबलरी लिस्ट दे दो, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरी वोकेबलरी लिस्ट है जो मुझे नहीं समझ आ रही है। इसमें से कितने सारे वर्ड्स होंगे जो ऑलरेडी आपको पता होंगे शायद, या कितने सारे वर्ड्स होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आएंगे लेकिन आप नहीं जानते हो, क्या आपको नहीं पता है, मुझे पता है। तो अपनी वोकेबलरी लिस्ट बिल्ड करनी चाहिए, तो वो मैं डे 1 से इनकरेज करती हूँ। ग्रामर की Okay. बात करूँ तो मेरे पास काफी सारे रिसोर्स है, काफी सारे मटेरियल है, जिसको मैं ग्रामर टॉपिक के हिसाब से मैं बुक्स दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ स्क्रीन, और उनको एक्सरसाइजेस कराती हूँ। और मेरा एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से रीजनल लैंग्वेज को की हेल्प ले करके उनको कंपैरिजन के थ्रू पढ़ाओ, कि अगर Okay. इंग्लिश में देखो ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ये चीज फ्रेंच में भी एग्जिस्ट करती है, जर्मन में भी एग्जिस्ट करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो ये मैं थोड़ा सा उनको पहले थोड़े टर्मिनोलॉजी से भी अवेयर करा देती हूँ कि अगर हम सब्जेक्ट एक सेंटेंस बनाते हैं तो क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब कैसे निकालते हैं। तो वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पहले उनको टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर मैं उनको थोड़े आती हूँ। और जब आप लेवल 1 कर लेते हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस वैसे ही बन जाती है। फिर आप Hmm. धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि अच्छा ये चीजें आपको, अगर आपने बहुत दिन के बाद पढ़ाई शुरू की है, तो धीरे धीरे फिर आप रिकॉल भी करने लगते हो कि अच्छा ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ही थी।
बस उसमें हम फ्रेंच वर्ड्स या जर्मन वर्ड्स डाल दें। तो वो एक चीज ओके। है। और यू नो व्हाट, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ, अपने वाइज है ना, जब WHY, वाई क्यों, उसको सेटिस्फाइड रखो। अगर आपका वो आंसर वाई बिहाइंड का रीजन मिल गया, तो आपको इजी लगेंगी चीजें। अगर मैं सिर्फ आपको रूल्स बना के छोड़ दूंगी, रूल्स बता के, थोड़ा लगेगा कि क्यों है क्या है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो मेमोराइजेशन हो जाता है फिर, कि हाँ आपने आपके पास है, आपने रट्टा लगाया, हाँ याद कर लिया, हाँ रीजन हाँ बिहाइंड इट। हाँ। तो जितना हम डाउट को क्लियर करते हैं गैस, उतना हम उस लैंग्वेज को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। दो दो तीन क्लासेस या 5 क्लासेस तक तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे वाइज बहुत आएंगे, तो जस्ट होल्ड हम्म। ऑन योर क्यूरियोसिटी। और 5 क्लासेस के बाद मुझे पूछो आप अपने क्वेश्चंस, तो मैं भी हम्म। आपको उस समय उस लेवल पे रहूंगी कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। और जितने आप या। उनके वाइज का आंसर देते जाओगे, उनको उतनी चीजें इजी लगती जाएंगी। तो ये एक दो चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। ओके, तो अभी हमने स्कोप की बात तो कर ली। हम्म। पर्सन डजंट वांट टू गो आउट, हम्म। अब्रॉड और आउट ऑफ द कंट्री, तो हम्म। इंडिया में तो इसके लिए कुछ स्कोप है? हाँ, काफी सारा है। एक तो एग्जांपल मैं दूंगी कि सपोज आप सोचते हो कि अगर मैं अपने कॉमर्स पढ़ लिया या आर्ट्स ले लिया, तो आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के डोर नहीं ओपन होंगे, वो सिर्फ IT प्रोफेशनल्स के लिए या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे एक स्टीरियोटिप मैं आपका बस्ट करना चाहूंगी, दैट कि अगर आप जस्ट लेट्स से, कि एक एग्जांपल देती हूँ, कोई एक स्टूडेंट है जो BA या आर्ट्स में कुछ कर रहा है, ग्रेजुएशन, ठीक है। एक एकदम सिंप्लीफाई आप ग्रेजुएशन कोर्स करो और साइड बाय साइड आप एक लैंग्वेज भी पढ़ो। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आप जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन कुछ भी ले लो, लेकिन टॉप लेवल तक पढ़ो। मैं बोलूंगी जैसे अगर मान लो 5 लेवल्स है, तो एटलीस्ट 4 लेवल तो अचीव करो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी CV बनाओ और आपको टाटा, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनाई, ये सब के डोर आपके ओपन हो जाएंगे। और आपको इक्विवेलेंट टू इंजीनियर सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसलेटर्स चाहिए। उनको कंपनीज में ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जो लैंग्वेज की अलग डिपार्टमेंट होती है। कैसे वो काम करती है, मैं उसका एक छोटा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। जैसे जो उनके पास डेवलपर्स होते हैं या जो उनके पास टेस्टर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, ठीक है। अगर कंपनी का टाई अप किसी फ्रेंच कंपनी से है, लेट्स से कि किसी फ्रेंच कंपनी से है, तो वो जो फ्रेंच कंपनी होती है, चाइनीज कंपनी होती है, जापानीज कंपनी होती है या जर्मन कंपनी होती है, ये लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में ही आपसे डील करेंगे। दे नेवर गो फॉर ओके। इंग्लिश, ठीक है। तो वो आपको जो हम्म। डॉक्यूमेंट देंगे ना, वो हमेशा आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में देंगे। तो वो कंपनीज एक सेटअप करते ओके। हैं अपना एक लैंग्वेज डिपार्टमेंट। तो बीइंग अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, मैं वहां पर, मेरा रोल ये होगा कि मैं उसको चेंज करके डेवलपर डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूं। और फिर वो उस पर अपना टेस्टिंग का काम या जो भी उनका काम होता है, हम्म। वो उस पर काम करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के डोर आपके लिए ओपन हो जाते हैं। देन आप एज अ ट्रांसलेटर काम कर हम्म। सकते हो, फ्रीलांसर। अगर सपोज आपको किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करनी है, तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आपको करना पड़ेगा। वो करने के बाद आप एक फ्रीलांसर लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हो और अपने आप को एक रजिस्टर कर सकते हो। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपग्रेड अपवर्क एक वेबसाइट है, और एक fever.com है। वहां पर आप अपना प्रोफाइल बनाओ और आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जिनको बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवाना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाना है। और वो आपको पर वर्ड की चार्जेस देते हैं। तो वो एक हो गया। और तीसरा, एज अ ट्रेनर तो आप कभी भी काम कर सकते हो। अगर आप इंडिया तो में हो, टीचिंग प्रोफेशन भी देख रहे हो, तो आप टीचर तो बन ही सकते हो। तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं। बेनिफिशियल फॉर द हाउसवाइफ हु आर ऑप्टिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, हाँ, तो ये उनके लिए भी है, हाँ हाँ। अभी कैसा है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लेना सीख लिया, तो आप गो हम्म। ग्लोबल, मतलब आपको कनाडा के स्टूडेंट्स, दुबई में बहुत फेमस है फ्रेंच लैंग्वेज, वहाँ के हर ओके। स्कूल में है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, दे विल पे गुड, मतलब हम्म। उनकी पेमेंट्स अच्छी है। तो वो कर सकते हो आप। तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है टीचिंग के हम्म। लिए। तो आप अपना 1 साल इन्वेस्ट करो, 1 साल से भी कम, 8 महीने इन्वेस्ट करो, एंड यू ओके। विल गुड टू गो, मतलब आप टीचिंग के लायक हो जाओगे। ओके, so what do the student can expect in their first class? फर्स्ट क्लास जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करती हूँ। उनको कुछ ग्रीटिंग्स सिखाती हूँ। ग्रीटिंग्स मैंने 20 ग्रीटिंग्स जो बहुत यूजफुल है, वो पेजेस मैंने बना के रखे हैं, मेरे अपने नोट्स हैं।
मेरे अपने पीडीएफ है, अभी मैं ऑन द वे हूँ, अपने बुक में राइट कर रही हूँ, तो उसके ओके। कुछ पेजेस हैं जो मैं शेयर करती हूँ। और साथ में मैं आपको स्टार्ट करती हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन से। 5 या 6 ओके। सेंटेंसेस आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिखाती हूँ। तो आप डे 1 से शुरू हो जाते हो थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बोलने के लिए। अपने बारे में आप कभी भी खड़े होकर बोल सकते हो, और थोड़े थोड़े ग्रीटिंग्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर डेज मंथ्स वैसा शुरू होता है। तो फर्स्ट डे में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ ग्रीटिंग्स सीख लोगे कॉन्फिडेंटली। थोड़े लिसनिंग स्किल्स होंगे, अगर टाइम अलाउ होगा तो हम लिसनिंग करते हैं। और थोड़े बहुत बुक्स मटेरियल्स वगैरह मैं दिखा देती हूँ, लिसनिंग के दिखा देती हूँ कैसे होता है। तो डे 1 में तो इतना कवर हो सकता है। So, if a person or a student is going to start the language, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको बोलूंगी डोंट फॉर द परफेक्ट टाइम। ठीक है, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता। जब भी आपको लगता है कि हाँ आप अपने लिए 3 महीने निकाल सकते हो, 3 महीने भी नहीं देना है, 1.5 मंथ, 2 महीने। मैं तो अभी सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि मैं 30 डेज का 30 सेशंस का भी कोर्स दूँ, कि जिसमें आप इंट्रोडक्टरी क्लास ले सकते हो। तो स्टार्ट, जब भी आपको लगता है कि आप रेडी हो, आप स्टार्ट करो। जैसे हम बोलते हैं ना, स्विमिंग करते हो या फुटबॉल खेलने जाते हो, तो आपको अगर लगता है तो स्टार्ट। आपको फिर पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप दूर से बैठ के देखोगे तो आप कभी हम्म। समझ ही नहीं सकते कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती। सिर्फ पानी को देख के डरने से तो स्विमिंग नहीं आएगी, है ना। तो स्विमिंग के लिए आपको पानी में डूबना होगा, कूदना होगा, है ना, हाथ पैर मारने होंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग भी एक तरह का स्किल है। और एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगी, लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लर्निंग पार्ट, इट इज एन स्किल नाउअडेज। ओके, तो आपके पास अगर ये स्किल है तो आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास एक स्किल है। अब जैसे आपने बीए किया है, मैंने खुद बीएससी किया है, हम्म। पीसीएम में किया है, तो वो हमारा डिग्री बन के रह गया, कोई स्किल नहीं है वो। अब शायद कोई स्किल नहीं रह गई, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज में महारत हासिल करनी होगी। तो लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्किल, तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। बट स्टार्ट स्टार्ट योर जर्नी, उसको लेकर आप हेजिटेट मत करो। आप अगर फर्स्ट स्टेप लोगे तभी आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ पाओगे। फर्स्ट स्टेप लेने में ही हेजिटेट करोगे तो ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप लोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ऑफ कोर्स डू सम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑल, फिर आप देखो कि आपको मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेवल 1 से शुरू किया था एंड दे एंड अप लेवल 3, तो ऐसे Okay. स्टूडेंट्स भी है। Our viewers want to contact you or want to join your classes. पहले तो आप मुझे बताओ, आप ऑफलाइन क्लासेस देते हो या ऑनलाइन क्लासेस देते हो? आई एम कम्प्लीटली ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन। और मैं जूम पे लेती हूँ, मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन, और वो स्क्रीन ही आपके लिए बोर्ड बन जाता है। या। तो बस आपको बोर्ड पे देखना है। मेरे पास बहुत सारे हाईलाइट टूल्स है इसमें, और मेरा पेड वर्जन भी है। तो ये क्लासेस हमारा 1.5 आवर 2 आवर्स कितना भी चल सकता है। तो ओके। कोई टाइम लिमिट है ऑफ कोर्स, बट इट इज समथिंग कि देर विल बी नो इंटरप्शन। ऑनलाइन मुझे ज्यादा कभी लगता है कि आप अपने घर पे अपने कंफर्ट पे ले सकते हो क्लासेस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब क्लास है 5 मिनट पहले लॉग इन करो, और क्लास एंड होते ही आप अपने कंफर्ट जोन में ही हो। ठीक है, तो आपका सारा जो डिटेल्स है विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, आप कुछ अपने बारे में और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें तो यू हैव 2 मिनट्स। यहाँ पर मैं अपना नंबर भी हाईलाइट करवा दूंगी, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कभी भी लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको थोड़ा डाउट है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, करूँ भी या नहीं करूँ, मेरे लिए करियर सही है या नहीं है, तो आप मुझे जस्ट आई एम अ कॉल अवे। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप अपने डाउट मुझे पूछ सकते हो, मे बी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। या आपका कोई टीनेजर बच्चा है जो अभी तक कंफ्यूज है कि मैं किस चीज में, लैंग्वेज में मैं कहाँ करियर बनाऊं, तो लैंग्वेज कुड बी एन ऑप्शन। तो वो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर आपको ऐसे कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, स्पेशली लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल, आपको एक हेल्प, एक काउंसलिंग सेशन दे सकती हूँ। तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, है तो ना। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप डाउट में हो कि मैं किससे बात करूं, तो मैं हम्म। वहां पर आपको हेल्प कर सकती हूँ। वी कैन टॉक। और और एक और चीज है, जो अगर आप कभी घूमने भी जाओ, और जैसे आपको अगर चांस मिल गया कभी फ्रांस जाने का, पेरिस जाने का, और आप हम्म। अगर वहां पे लैंग्वेज लर्न करके जाओगे, या किसी भी कंट्री में आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज सीख के जाते हो ना,
तो आप उस जगह को ज्यादा एंजॉय कर पाते हो, ज्यादा डीपर वे में, ज्यादा प्रोफाउंड वे में कर पाते हो, क्योंकि फिर आपको चीजें समझ आती है आसपास की। अगर अभी मैं आपको फ्रांस में भेज दूं और वहां पे पूरी फ्रेंच है, वहां पे सारे होर्डिंग्स फ्रेंच में लगे, सारे सारे साइन बोर्ड्स वहां पर है, तो आपको ना मजा नहीं आएगा। आपको आधी चीजें आप समझ ही नहीं पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और जब थोड़ा आप पढ़ के जाओगे ना, तो आप उस जगह को जी के आओगे, मैं बोलूंगी। तो हाँ, ट्रैवल, अगर आप ट्रैवलर हो, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो ऐसे तो जो प्रो ट्रैवलर होंगे, आई एम श्योर उनको भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है घूम घूम या कर। तो अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, तो आपको छोटा एक शॉर्ट टर्म कोर्स तो लेना ही चाहिए। जैसे मैं 2.5 मंथ का कभी निकालती हूँ, कभी 30 सेशंस का निकालती हूँ। तो ओके। वो भी आप कर सकते हो, सो दैट कि आप थोड़े बेसिक वर्ड से अवेयर हो जाओ। तो दैट्स। दैट इज बेटर। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो बट आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आप हाँ शॉर्टर कोर्स से आप हाँ। स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक, इफ यू फाइंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड यू वांट टू मेक इट अ योर करियर, तो आप उसको कंटिन्यू कर लो, तो वही चीज सीखो। है, हाँ। बहुत लोग नहीं। इससे भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, टाइम का हो गया, पैसे का हो गया। तो आप एक या शॉर्ट टर्म कोर्स ले लो, और आप अपने आप को देख लो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, और फिर आप आगे बढ़ो। वो भी एक अपॉर्चुनिटी मैं दे सकती हूँ आपको। या दैट विल बी गुड। Okay. So, Neha, it was nice talking to you, and we learned many things about the language, especially French and German, और उसका स्कोप कैसा है और किस तरह से हम आपसे सीख सकते हैं इन वेरी फन एंड enjoyable way. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन स्टोरीज दैट शाइन। और मैं आशा करती हूँ आपकी स्टोरी भी ऐसे शाइन करे और बहुत सारे कनेक्शंस मिले आपको, और बहुत लोग आपसे फ्रेंच और जर्मन सीखें और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाएं। Thank you so much, Yogita. The feeling is really mutual. I thoroughly enjoyed talking with you. और मुझे बहुत मजा आया, और काफी चीजें हमने बात करी है। आई होप कि इससे कुछ लोग इंस्पायर हो जाए, और अपने जो भी जहाँ पर भी स्टक है, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, तो दे शुड टेक अ स्टेप और आगे बढ़े, और अपना अपने लाइफ में कंक्रीट कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर थोड़ा एक आगे स्टेप लें। That's really nice. Okay, Neha. So for today, we will end up here and wish you all the best. और किसी को भी अपनी स्टोरीज लोगों तक पहुंचानी है, then you can contact me for the podcast interviews. Okay, Neha. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye.